Morning students. Today we shall discuss few more things about whole number class 6. That is our chapter number 2. In our previous video we have learned what is whole number, what is natural number, how to represent whole number on number line, how to add the whole numbers, how to subtract the whole numbers, how to multiply the whole numbers on number line. But today there is one new topic for us, that is called properties of whole numbers. Properties of whole numbers. Every kind of number, whether it is a whole number or natural number, or in 8th, 7th or 8th class you will come to know rational numbers, will have certain properties. Here we will discuss the properties of whole numbers. So what are these properties? First of all, let us discuss the first property, that is called closure property. Closure property. Now, what do you mean by closure property? We will discuss it. For addition, for subtraction, for multiplication, for division. For all 4 operations, closure property will be discussed. For whole numbers. Now, closure property for addition. For addition. And what does it mean? It means, suppose I have take अभी whole number लेते हैं 3, उसमें एक और whole number 4 को ऐड करते हैं. If I add whole number 3 with 4, that is another whole number. What is our answer? That is 7. 3 plus 4 is 7. We all know that. But what is very special thing about this? That 3 is a whole number, 4 is another whole number, and 7 is also a whole number. हमने एक whole number को दूसरे whole number में ऐड किया तो आंसर में क्या आया? Whole number आया. अगर एक और लेते हैं 2 plus 10, both are whole numbers. What is 2 plus 10? That is 12. Another whole number. 0 is a whole number, 3 is a whole number. What do we get? 3. So 3 is another whole number. यहाँ पर एक whole number लिया, उसको whole number में ऐड किया, whole number मिला. यहाँ पर भी whole number लिया, उसको एक और whole number में ऐड किया, whole number मिला. Whole number plus whole number is whole number. यही है closure property, which says if you add 2 or more whole numbers, you will get another whole number as your sum, as your total. That means whole numbers are closed under addition. That means whole numbers follows the closure property. अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है. आसान भाषा में समझना हो, सपोज एक बड़ा सा बॉक्स लिया हमने, उस बॉक्स में सारे होल नंबर्स को हमने भर दिया, है ना, और उस बंद बॉक्स में से जो उसमें सारे होल नंबर बंद हैं, हमने कोई 2 होल नंबर निकाले. सपोज आई टुक आउट 3, आई टुक आउट 4, और इन लोगों को मैंने ऐड किया, प्लस किया. क्या मिला मुझे आंसर में? प्लस करने पर 7. तो वो 7 कहाँ मिलेगा मुझे? 7 नंबर का जो कार्ड, जैसे मैं 3 का कार्ड बाहर निकाला, 4 कार्ड बाहर निकाला, तो 7 नंबर कार्ड कहाँ मिलेगा मुझे? उसी बॉक्स के अंदर मिलेगा. उसी बॉक्स में बंद है वो. सो जो अगर आंसर उसी बॉक्स में बंद है, इट मीन दैट इज क्लोज अंडर एडिशन. अगर बॉक्स अंदर बंद नहीं है, इट मीन इट इज नॉट क्लोज अंडर एडिशन. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेज इफ आई ऐड होल नंबर एंड होल नंबर, द आंसर शुड बी अ होल नंबर. और यहाँ पर वो वही हो रहा है कि होल नंबर को होल नंबर ऐड करने पे हमें होल नंबर ही मिल रहा है. It means closure property is following by whole numbers for addition. Now we have discussed that whole numbers are closed. Yes, closed under addition because whole number plus whole number is another whole number. Now let us discuss the operation subtraction. Whether the subtraction process is closed for whole numbers or not. So for that, similarly, I took 2 whole numbers, 4 and 3. I subtract 3 from 4. अगर मैंने 3 को 4 से माइनस किया, मुझे आंसर क्या मिला? 1. You all know 4 minus 3 is 1. बट अगर यहाँ पर 3 हो जाए और यहाँ पर 5 हो जाए, अब ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है. अब मैं इस होल नंबर को इस होल नंबर से अगर माइनस करूँ तो क्या होगा? क्या इसका आंसर एक होल नंबर आएगा? नहीं, ये होल नंबर नहीं आएगा, बिकॉज 3 minus 5 is not +1, it is -2. अभी 6 में आप इसको नहीं समझ पा रहे हो शायद, लेकिन आगे जाके आपका चैप्टर आएगा, वहां आप समझेंगे. हम जब एक बड़ी क्वांटिटी को, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करते
तो हमें नेगेटिव क्वांटिटी मिलती है। सो दिस इज कॉल्ड -2। तो इसका मतलब ये -2 होल नंबर नहीं है। आसान क्वेश्चन समझना हो कि 5 को हम अभी 3 से माइनस नहीं कर सकते। अगर इंटीजर पढ़ लेंगे तो आप ये समझेंगे कि 3 - 5 - 2 होता है। अभी आप समझिए कि 3 को हम 5 से माइनस कर 5 को हम 3 से माइनस करेंगे तो होल नंबर नहीं मिलने वाला है, आपको होल नंबर नहीं मिलेगा। इट मीन्स it is not true for all whole numbers that if we subtract a whole number from another whole number we shall get another whole number as our answer। whole number से whole number को माइनस करने पे हमेशा whole number मिलेगा, जरूरी नहीं है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? नो, नॉट क्लोज्ड फॉर, या subtraction is not closed, the whole number is not closed under subtraction। इस सेंटेंस को इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये क्लोज नहीं हुआ। व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन? 7 3 21, 4 7 28, 8 9 72। आप जितने भी पेयर ले लीजिए या फिर एक से ज्यादा ले लीजिए, आप जितने भी होल नंबर्स लेने मल्टीप्लाई करेंगे आपको हमेशा होल नंबर ही मिलने वाला है, हमेशा होल नंबर मिलेगा आपको आंसर में। होल नंबर इनटू होल नंबर इज अनदर होल नंबर। तो यस इट इज क्लोज, ये क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन क्लोज है। मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज फॉर होल नंबर्स, या होल नंबर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। व्हाट अबाउट डिवीजन? If 4 is divided by 2, we get 2. But if 4 is divided by 3, will not be a whole number. अगर हम 4 चीजों को 3 लोगों में बांटें तो उनको चीजें पूरी नहीं मिलेंगी, वो उनको पार्ट्स में मिलेंगी। हमें पार्ट्स करने पड़ेंगे चीजों के, तो होल नंबर नहीं आने वाला आंसर में। ऐसे ही if 9 is divided by 2, we get 4.5. 4.5 is not a whole number, ये whole number नहीं है। It means division is also not closed for whole numbers। क्योंकि क्या हो रहा है, हम होल नंबर से होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो होल नंबर नहीं मिल रहा है, मिल सकता है कभी नहीं मिल सकता है। बट अगर हमें क्लोज करना हो तो हमें सब केसेस में मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पर मिल रहा है सब केसेस में और यहाँ पर मिल रहा है सब केसेस में। तो डिवीजन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में ये क्लोज नहीं है। फॉर रेस्ट ऑफ द केसेस इट इज क्लोज। फॉर एडिशन ये होल नंबर क्लोज्ड है, फॉर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। क्यों क्लोज्ड है? बिकॉज होल नंबर प्लस होल नंबर इज होल नंबर, होल नंबर इनटू होल नंबर इज होल नंबर। ये क्लोज क्यों नहीं है? बिकॉज होल नंबर माइनस होल नंबर इज नॉट अ होल नंबर एंड होल नंबर डिवाइड बाय होल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो ये मोटी बात है जो। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, we shall discuss these properties for all 4 operations। whole number is commutative for addition, whether it is yes or no. whole number is commutative for subtraction, whether it is yes or no. whether the whole number are commutative for multiplication, whether the whole numbers are commutative for division। कैसे करेंगे? सेम चीज यहाँ करते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं 2 + 3, हमें आंसर मिला है 5। तो कम्यूटेटिव का मतलब है कि अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर दें, 2 + 3 को लिख दें तो 3 + 2, ये है कम्यूटेटिव। किसी भी ऑर्डर में आए नंबर्स तो उनको ऐड करते वक्त क्या उनका आंसर सेम आए? यस सेम आए। आप कोई भी दो नंबर लीजिए, 7 + 3 is 10 and 3 + 7 is 10। तो ये सभी होल नंबर्स हैं, हमने यहाँ पर ऑर्डर चेंज किया तो आंसर सेम आया। इट मींस एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। यस इट फॉलोज commutative properties is following for addition of whole numbers। so whole numbers are commutative for additions, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर चेंज करने पर क्या होगा, उनके आंसर में कोई भी अंतर नहीं आया, कोई फर्क नहीं आया। so it is commutative। what about subtraction? 3 - 2 is 1, but 2 - 2 is not 1। 3 - 2 is 1, but 2 - 3 is not 1। 3 में 2 हटा 1 बचेगा, आपको पता है, लेकिन 2 में से 3 हटाएंगे 1 बचेगा, नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने ऑर्डर चेंज किया तो आंसर में फर्क आ गया। आंसर सेम आता तो कम्यूटेटिव होता, आंसर सेम नहीं आया तो कम्यूटेटिव नहीं है। नो। अगेन मल्टीप्लिकेशन, 5 × 6 is 30 and 6 × 5 is also 30। 5 6 is 30 and 6 is 30, you all know। it means yes multiplication is commutative for all numbers।
होता है। डिवीजन 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 and 2 divided by 10 is 1 by 5. So it is not commutative. यहाँ पर आंसर में फर्क आ गया। जब 10 को 2 में डिवाइड किया तो 5 हुआ, जब 2 को 10 में डिवाइड किया तो 1 by 5 हुआ। तो हमें आंसर सेम नहीं आया, आंसर सेम नहीं आया, so it is not commutative. Similarly, addition is commutative, subtraction is not commutative, multiplication is commutative, and division is not commutative. For whole numbers, we are discussing the properties of whole numbers. So all these results are for whole numbers only. Now the next property is called distributive property. What is distributive property? So distributive property says if we have three whole numbers like 7 plus 3, अब हमारा दो नंबर ये हैं और इसमें हम एक और होल नंबर मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से, तो 2 into 7 plus 3, 2 into 7 plus 3 is equal to 2 into 7 plus 2 into 2. This is called distribution of multiplication over addition. Distribution of multiplication over addition. हमने क्या किया, दो नंबर ऐड हो रहे थे ब्रैकेट के अंदर, बाहर से एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, बिकॉज ये नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखा है तो इट मींस ये दोनों में जाके मल्टीप्लाई हुआ, 7 भी होगा 3 भी होगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इस 2 के मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया 7 में भी और 3 में भी। इसको 2 से 7 से मल्टीप्लाई किया और 2 3 से मल्टीप्लाई किया, लाइक दिस 2 into 7 plus 2 3। ये रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का। अब समझते हैं इस चीज को कैसे। अगर यहाँ से सॉल्व करने पर जो आंसर आए और यहाँ से जो आंसर सॉल्व करने पर आंसर आए, तो आंसर सेम आने चाहिए। अगर सेम है इट मीन दिस इज ट्रू। सो लेट्स फाइंड 2 into 7 plus 3 can be written as 7 plus 3 is 10, you all know. So 2 into 10 is 20, 7 plus 3 10, 10 into 2 20। इसको निकालते हैं, देखिए यहाँ पर 2 into 7, 2 into 3, 2 7 जा 14, 2 into 3 6, you all know from what mass rule। अगर हम इंटू भी करना हो प्लस भी करना इंटू भी करना हो, क्या करते हैं, इंटू करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 3 6, so 14 plus 6 is 20। तो आपने क्या देखा, इधर से भी वही आया इधर से भी वही आया, इट मींस ये सही है। अगर हमें इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, 2 into 7 plus 3 को करने के लिए हम 2 को 7 मल्टीप्लाई करेंगे देन 3 मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर एक्सरसाइज इन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज क्वेश्चन number 4 from exercise 2.2. This is the question about application of this property. The question is multiply this, find the product of these two numbers by applying suitable property. By applying suitable property. So we should apply this property here, and by applying this property here, we can find the answer of this question very easily. Now this 738 into 103. I can split this number like 100 plus 3. क्या किया, इस नंबर को स्प्लिट किया 100 और 3 में। अब क्या मिला, ये देखिए 738 इंटू ब्रैकेट में दो नंबर ऐड हो रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले कि ब्रैकेट में दो नंबर ऐड हो रहे हैं और उनके बाहर से नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेज कि वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में करना है। तो 738 इंटू 100 प्लस 738 3, जो भी नंबर ब्रैकेट के बाहर है वो दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, और ये प्लस यहाँ बीच में आएगा 100 के बाद। नाउ इट्स वेरी इजी, 738 इंटू 100 ये, और इसको अगर आप ओरली कर सकते हैं, 3 8 24, 3 3 9 plus 2 11, 1 कैरी, 3 7 21 plus 1 22। आप इसको ओरली कर सकते हैं। When add these numbers, आप इनको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। Instead of multiplying like traditional way, अभी हम जो करते आ रहे हैं, हम इसको इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ से जाता है यहाँ जाता है फिर सम करते हैं, बल्कि ये ज़्यादा आसान है और इजी है करना। हमने क्या किया, हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की। आप चाहते हो आप इसको भी स्प्लिट कर सकते थे, लेकिन इसको स्प्लिट करने पर भी हमारा सवाल आसान नहीं बनता, बिकॉज वहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं, 700 मिलता, 30 मिलता, 8 मिलता, इस तरह आता, लेकिन इसको करना आसान। तो ये हमारा माइंड है कि हम किसको करने
करने से हमारा सवाल आसान बन सकता है, उसको स्प्लिट करके हम लोग उस प्रोडक्ट को आराम से निकाल सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स. नाउ the next property is associative property for multiplication, addition and multiplication only. We shall discuss only two operations here, addition and multiplication of whole numbers. Now we have, suppose we have three whole numbers like 3 plus 4 plus 5. अब हमको तीनों ऐड करनी है, बहुत आसान है करना इसको, आप कर सकते हैं. आप करते कैसे हैं इसको? जनरली क्या करते हैं, हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा होल नंबर दिए हो, क्या करते हैं, पहले इन दो को जोड़ते हैं, 3 plus 7 करते हैं और फिर प्लस 5 करके और अपना आंसर निकाल देते हैं. 3 plus 4 7 और प्लस 5 को बाद में ऐड किया, हमारा आंसर आ गया. अब आपने क्या किया, पहले 3 plus 4 को ऐड किया, देन यू ऐड 5. मैं कहूं कि अगर मैं 3 plus 4 को ऐड करने के लिए पहले 4 plus 5 को ऐड करता हूं तो क्या होगा, क्या आंसर में कोई बदलाव आएगा? देखते हैं. 4 plus 5 is 9, अगेन 3 plus 9 is 12. तो आंसर सेम आएगा. दिस इज एसोसिएटिव. आप जब आपके पास एक से दो से ज्यादा नंबर हैं तो किन दो नंबर्स को आप एसोसिएट कर सकते हो, करना है आपके ऊपर है. आपका जो क्वेश्चन है आसान है, जहां से आसानी से सॉल्व हो जाता है, आप उन दो नंबर को पहले एसोसिएट कीजिए, पहले उन्हें जोड़िए या मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर विल नॉट बी चेंज्ड. दिस इज द एडिशन. फॉर मल्टीप्लिकेशन यू कैन सी 3 into 4 into 5. पहले में 3 into 4 किया, क्या मिला 12 into 5 किया, क्या मिला 60. 3 4 12 into 5 60. 3 4 12 into 5 फिर 60 मिला. और अभी हम अगर 4 into 5 पहले कर दे तो 4 into 5 is 20, 23 जा 60. सेम आंसर है. ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम पहले किन दो को एसोसिएट करें. This is called associative property. Now we shall discuss a case where we have applied this property, and the case is from your exercise 2.2, a question. Now this is question number I think 1 from exercise 2.2. The question is find the sum by doing suitable arrangement. ये 3 नंबर दिए हैं वहां 837, 208 and 363. अब इनको कह रहा है सुटेबल रीअरेंजमेंट करिए, इनको रीअरेंज करो नंबर को और इनका सम. जरूरत क्या उसको करने की, जरूरत ये है हम इन नंबर्स को जोड़ सकते हैं, वेरी इजी. बट आफ्टर रीअरेंजिंग द ऑर्डर ऑफ दिस नंबर, आफ्टर रीएसोसिएटिंग द नंबर्स, वी कैन फाइंड द सम मोर इजीली. हम ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे, जरा ध्यान से देखिए इन नंबर्स को. अब अगर मैं इस नंबर को इधर ले आऊं, पहले 837 एंड 363, इन दो नंबर को एसोसिएट करो. पहले 208 क्या किया मैंने, पहले इन दो नंबर को एसोसिएट किया, बजाय इन दो करने के इन दो को पहले एसोसिएट किया और उसके बाद ऐड किया. यहां पर कम्युनिटी प्रॉपर्टी हमारे काम आई. कम्युनिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमने अगर नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया तो एडिशन में सम में कोई फर्क नहीं आता. तो हमने इनका ऑर्डर भी चेंज कर दिया और इन दो को हमने पहले एसोसिएट किया. तो क्या हुआ, 7 plus 3 10, 3 plus 6 9 plus 1 10, 8 plus 3 is equal to 11 plus 1 12. So this is very easy to add. It will become this. It will become this. और अगर आप इन दो को पहले ऐड करते और फिर इसको सम करते तो सेम ही आता है. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एंड इन दिस केस हमने क्या किया, इसको यहां पहले ले आए, हमने इससे पहले लिया. सो दिस इज आल्सो यूज ऑफ कम्युनिटी प्रॉपर्टी इन दिस क्वेश्चन. यहां पर हमने कम्युनिटी प्रॉपर्टी का भी यूज किया है, बिकॉज़ हम इसको पहले ले आए और इसको बाद में ले गए. तो ये है एप्लीकेशन पार्ट ऑफ दीस प्रॉपर्टीज. So today we discussed about the properties of whole numbers, closure property, commutative property, associative property, distributive property. So I hope you will solve exercise 2.2 now. Two more topics that have to be discussed, and very small topic are additive identity and multiplicative identity. What is additive identity and multiplicative identity? Additive identity is 0. The number 0 is called additive identity for whole numbers. And what is multiplicative identity for whole numbers? That is 1. Now
नाउ व्हाट डज इट मीन? एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा एक नंबर जिसको किसी भी होल नंबर के प्लस करने पर वही नंबर मिले। हमने होल नंबर लिया 2, उसमें क्या प्लस करेंगे? 2 ही मिलेगा। 0, 2 + 0 is 2, 4 + 0 is also 4, so this 0 is called additive identity। इस 0 को ऐड करने पर अब कोई भी नंबर अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है, that's why it is called additive identity। तो ये 0 additive identity है क्योंकि 0 को 2 प्लस करने पर 2 ही रहता है। What is multiplicative identity? That is 1। It means 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए वही नंबर मिलेगा। 1 × 7 7, 1 × 8 8, 1 × 9 9। 1 को आप किसी भी नंबर में ऐड कीजिए आपको वही नंबर मिलेगा, 7 ही मिलेगा, 8 ही मिलेगा। So this is called multiplicative identity. This is called additive identity. So these are few topics of whole numbers, properties of whole numbers, closure, commutative, associative, and distributive identities, additive identity, multiplicative identity. All these concepts can be helpful to solve questions of exercise 2.2. I advise you to look at the examples of exercise 2.2 also. That will also help you to solve these questions. Look, now understand these properties have also discussed in class 7 and 8 and 9 also. Same properties for integers, positional numbers will be discussed in next classes. So don't forget to learn this property here, because अगर आपने अभी समझ ली अच्छे से तो आपको नेक्स्ट क्लासेस में बड़ी आसानी होगी इनको समझने में। So that's all for today. Thank you.